Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. A very warm welcome to all our respected speakers, colleagues, and participants. I am Dr. Saki Mushtaq, and it's my pleasure to host today's second session of the Gen workshop on mastering the science of research organized by the Global Entomologist Network. This session aims to empower students, early career scientists, and academic professionals with essential skills for conducting impactful research, from conceptualization and experimentation to publication and global communication. In today's rapidly evolving scientific world, mastering research methodology isn't just an academic requirement. It's the foundation for innovation, critical thinking, and real world problem solving. We are honored to have with us distinguished researchers and scientists. They bring valuable perspectives on how to conduct quality research, manage projects, and publish effectively in high impact journals. Each of our esteemed speakers will share their professional journey, practical experiences, and strategies to help you navigate your own path in research and academia with confidence. Please stay engaged throughout the session, and use our WhatsApp group for asking questions, or you can send your questions in the chat box in the Zoom, and we'll ask those questions on your behalf. Now, without further delay, I warmly invite Dr. Mehreen, the General Secretary of the GEN, to introduce our first speaker, Dr. Mehreen. Assalamu alaikum. I am Mehreen Hanif, working as an IPM specialist, and it's my pleasure to host today's second session of Gen workshop on mastering the science of research. Now we move to our first talk of session titled Article Writing and Publication. To speak on this important topic, we are honored to have with us Dr. Shakil Ahmed, a renowned plant molecular biologist and biotechnologist. Dr. Shakil holds a PhD in crop genetics and breeding from the Chinese Academy of Agriculture Sciences, Beijing. He is currently serving as an biotechnology consultant at the Ministry of Environment, Water and Agriculture, Saudi Arabia, where he leads key initiatives in biotechnology, genomics, and sustainable food system. With his extensive academic and research background, we look forward to gaining valuable insight into effective scientific writing and the publication process. Dr. Shakil Ahmed, we warmly welcome you and invite you to take the floor. Dr. Shakil Ahmed. Yes, he joined. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Welcome, Dr. Shakil. Please, you can start your presentation now. Okay, thank you very much. First of all, thank you for the organizers for inviting me this wonderful session to speak about the writing article and submissions. Afterwards, apologize for my casual dressing due to some reasons. I hope you will enjoy the discussions and the content that I'm going to deliver verbally. I'm sorry I couldn't prepare my presentation, which I was supposed to, but unfortunately, I couldn't do that. I hope, but I will use some of the examples to deliver my content or the idea, and I hope it will be useful. Now let's move forward towards our topic, and the topic is very interesting, of course, writing article and submission. Okay, मैं mix बात करूंगा, ठीक है? I don't know please. how the audience is. Yeah, Dr. Shakil. International audience. Do we have the international audience? Yeah, we have some few international audience, but majority of Okay. are from Pakistan. So I suggest you can use both English and Urdu. Because this actually workshop Okay, if mainly we have designed. some international Yeah. audience, then I'm quite comfortable in English as well. No problem in that.
if they can understand Urdu. Only few, maybe one or two, maybe. I don't know, they either joined or not. I think Okay, one all one right, is here, only one. all right, So all right. just you can 50-50 inshallah. Because we actually the Okay. main goal that we want to understand the actual concept of the scientific writing to our audience. It's not like a lecture, it's a discussion based or a practical based that mashallah you had a lot of experience in research while in Saudi Arabia, in China, and in Pakistan. Mashallah, you having postdoctorate, and currently you are working as a consultant biotechnology in the MEWA, the Ministry of Agriculture, Saudi Arabia. So we actually want that our audience they try to understand. It's not a routine class lecture. It's just we based on the discussion, just for 15-20 minutes. You can talk. Then we will take some questions. How we can write the articles or the publish effectively. Most of them, I think, they are master students, or some are PhDs, or some are bachelor, or they are going to start their master. So this is actually that we want. The workshop actually mainly designed for the Pakistani audience, but we received some requests, so we allowed some, and we told them that this is actually for the Pakistani, and mostly we will talk in the Urdu. So I think हमें उर्दू में ज़्यादा इसको फोकस करना चाहिए। और बाकी जो सर आपने बात की कि आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की, माशाल्लाह आप खुद एक प्रेजेंटेशन है। एज मच एज आई नो यू एंड द रीजन यू टोल्ड मी सम इंसिडेंट हैपेंड विद यू, may Allah give you good health, and thank you very much you came and joined, and you spare your valuable time to talk with our audience and share your valuable knowledge. Thank you very much. I'm so humbled and so honored. Thank you so much for your kind words, Dr. Sakib. It's my truly privilege that I work with you, and we learned a lot from each other. Anyway, thank you very much. I would also prefer to be more engaging with the audience rather just speaking. So it's really good to know from you that you are also interested in this. So I will limit my talk and limit my content for few minutes only, and then we will discuss with the audience. We will have their question, and I will try to address their questions as much as possible, inshallah. So before going towards any technicality or starting the topic, I think it is very important topic. Article writing is a skill, is an art, and if I believe if someone is interested in learning or gaining some experience in article writing, they should take regular courses. This is the first and the foremost tip and the suggestion. I mean, this is not something that you can learn quickly, but slowly. So if I can see a good number of interested aspirants who are interested in learning article writing. So this is the first suggestion, that okay, go for some courses, regular courses in universities, in your colleges, and learn it properly. Okay, now I'm going to share a picture. So we will start our topic formally, and we will discuss the content step by step. And I will try my best to limit my talk and engage with you guys as much as possible, inshallah. Okay, I don't have the permission, I think, to share. I have sent the request to moderator. Yeah. You can share now. Okay. Well, let me scroll. Browse.
Okay, can you see a map, article structure map on your screens? It's blank actually. Okay. So can you see my folder something? Yeah, What before the screen you shared it's visible now. It's something black in okay, gray color. okay. Let me share another screen, maybe this one now. Okay. I hope so. Yeah, it's Now you can see. visible. It's Now visible. it's It's Okay. visible. Okay, perfect. So let's switch our mode from English to Urdu. yeah, एक please. It's आर्टिकल compulsory. It's एक compulsory. आर्टिकल हमें सिंपल एक क्वेश्चन है कि हमने एक आर्टिकल लिखना है, और वो आर्टिकल साइंटिफिक आर्टिकल है जिसे हमने 1 2 साल 3 साल की हैक्टिक स्टडी जो है उसको अब प्रेजेंट करना है, पब्लिश करना है, जर्नल को सबमिट करना है। उनके रिजल्ट्स को उस जो 2 3 साल की एफर्ट है, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसको कंक्लूड करके प्रेजेंट करना है और लोगों को दिखाना है कि हमने ये काम किया है। अच्छा, इससे एक पहले स्टेप, आर्टिकल राइटिंग से एक पहले स्टेप होता है, वो उसे उसे हम कहते हैं प्रपोजल राइटिंग। वो आपके इसी सेशन में वो कवर होगा, और मेरे बाद शायद कोई प्रेजेंट करेगा इस पे। तो जब हम प्रपोजल राइट करते हैं ना, प्रपोजल होता है कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम एक आइडिया जनरेट करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा, ये गैप्स हैं इस फील्ड में और इनको हम ऐसे फिल कर सकते हैं, ऐसे स्टडी कर सकते हैं। तो एक आइडिया होता है हमारा, वो उसको उसको ऑन पेपर ले आते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशंस, रैशनल्स, उसकी सारी बैकग्राउंड और इंफॉर्मेशन देने के बाद हम एक जो है वो प्रपोजल डिजाइन कर लेते हैं, एक आइडिया ऑन पेपर ले आते हैं कि अच्छा, हम ये काम करेंगे और ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग के बाद हम उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं और 2 3 साल की एफर्ट के बाद जो है एक हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है। अब हमने जो काम किया, अब हमने उसको शो केस करना है। उसको शो केस करने के ना, अब एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर है साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो उसका एक लेआउट है, हम ऐसे ही नहीं रैंडम उसको कुछ भी लिख दें और पब्लिश कर दें, ऐसा नहीं है। ये जो आप सामने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें उस लेआउट को बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके कितने सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन का क्या पर्पस है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं और हमें उसमें क्या लिखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो पहला सेक्शन उन्होंने दिया, मतलब इसमें बयान किया हुआ है और जो बनता है एक पेपर की शक्ल में, ये एक प्रॉपर पेपर समझे। ये जो एक फैनल सी एक एक पाइप सा शो हो रहा है, एक सिलेंडर सा शो हो रहा है, ये एक पेपर समझे आप इसे। मैं बाद में एक पेपर पे भी आऊंगा, अपना पेपर आपको इसी स्ट्रक्चर पे जो डिजाइन किया हुआ, पब्लिश किया हुआ, हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करेंगे। तो इसमें पहला पहला स्टेप है एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, मेथड्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स, हमने कौन से मटेरियल्स एंड मेथड यूज किए, फिर हमारे रिजल्ट्स क्या आए, हमने जो काम किया, जो मटेरियल एंड मेथड यूज किया, उससे हमारे पास आउटकम क्या आया। और लेटर ऑन हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अगर प्रीवियस स्टडी है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हैं या उसके साथ इन लाइन कैसे हैं। तो हम अपने रिजल्ट्स को प्रीवियस स्टडीज के साथ डिस्कस करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस फाइंड करते हैं, सिमिलैरिटीज फाइंड करते हैं, और फिर हम उसमें से चीज़ें ऐसी निकालते हैं जो जस्टिफाई कर सके हमारे काम को, हमारे रिजल्ट्स को, कि अच्छा, पहले काम ये हो चुका था, अब हमने ये किया है और ये उसके साथ कितना मैच कर रहा है, उसके साथ कितना इनलाइन है, सिमिलर है, या अगर कोई हमारे रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया या उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या उनकी स्टडी में कोई गैप था या उनका कोई मेथड डिफरेंट था या उनके रिजल्ट्स डिफरेंट आए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, द ओनली डिफरेंसेस आर बिटवीन द रिजल्ट्स। वो डिफरेंसेस क्यों आए, उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं, व्हाट यू स्पेक्यूलेट एट दैट मोमेंट, और फिर क्या वो जो स्पेकुलेशंस हैं वो रियल स्पेकुलेशंस हैं या they have been turned into you believe that this happened। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रोजेक्ट को
उन सब बेसिस पे एक्सटेंड भी करते जाते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेरी को, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है या जहां पे नोवेलिटी आ रही है या जहां पे एक डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड भी करते जाते हैं समटाइम्स। तो जितना आप एक्सटेंड करते हैं, जितनी आप नोवेलिटी लाते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतना पेपर आपका स्ट्रेंथन होता जाता है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, जिसमें मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे आर्टिकल के हैं वो बताए गए हैं, जो कि आई होप you most of you guys may be familiar with this structure. So I will not directly move forward to an article to show you, okay, हमने आर्टिकल कैसे डिजाइन किया, उसमें एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या क्या उसमें लिखा, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा, हम ब्रॉड टू नैरो करते जाते हैं चीजों को, या नैरो टू ब्रॉड करना है, ठीक है। फिर आगे रिजल्ट्स को कैसे कंपाइल करना है, और एक तरीकाकार क्या होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग का, हम क्विकली कैसे आर्टिकल राइट कर सकते हैं, हम रिजल्ट्स को क्विकली कैसे समराइज कर सकते हैं। तो मैं आर्टिकल की तरफ जाता हूँ और ये चीजें हम अब उसमें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक आर्टिकल शो हो रहा होगा, क्या आप देख सकते हैं? यस। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये एक फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टिकल है एक। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया और इसको कैसे लिखा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा, कौन कौन सी चीजें हैं जो जहन में रखनी जरूरी हैं। सबसे पहले, जब ये आर्टिकल, इस आर्टिकल से पहले ऑफ कोर्स एक स्टडी डिजाइन की होगी, एक प्रपोजल लिखा होगा, देन हमने ये स्टडी की थी। जब ये सारे हमने काम कर लिए थे, फिर हमने इसको पब्लिश करना था, तो सबसे पहला जो काम मैंने किया, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आर्टिकल राइटिंग, जैसे मैंने कहा कि कार्ड है, ये वेरी भी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी भी करती हैं, और लैब टू लैब भी सम टाइम स्ट्रेटजी वेरी करती है। तो या तो आप अपने मेंटोर को फॉलो करते हैं, लैब को फॉलो करते हैं, अपने कोलीग्स को फॉलो करते हैं, या फिर आपका एक अपना स्टाइल होता है। तो जो मैंने लर्न किया, या जो मेरी चीजें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा क्या होता था कि मैं जब एक काम कर रहा हूँ, एक प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ, तो जो जो मेथड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। मटेरियल्स एंड मेथड मेरे एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ ही राइट वो कंप्लीट हो जाते थे, ठीक है। जो जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैंने, एक लैब नोटबुक तो होती है हमारे पास जो हमने मेंटेन करनी होती है, उसके साथ साथ मैं उसको कंप्यूटर में अपनी एक वर्ड फाइल में भी उन चीजों को लिख लेता था। ये है स्ट्रक्चर लिखने का, हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल इन माय आईज, ठीक है। मैं इस पे स्ट्रेस दूंगा कि इन माय आईज, इन माय ओपिनियन। तो मैं मटेरियल्स एंड मेथड उसके साथ साथ लिख लेता था, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ। फॉर एग्जांपल 2 साल का एक्सपेरिमेंट है, 3 साल का है, तो उसके साथ साथ मैंने उन चीज़ों को जो है ना वो पहले अपना टाइम बचा लिया, प्लस जो मैंने मटेरियल्स यूज़ किए, जो मैंने मेथड्स यूज़ किए, वो एक्यूरेटली मैंने उनको लिख लिया। अच्छा, जब ये कर लिया, मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, मेरे पास कुछ फिगर्स आई, टेबल्स आए, डाटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज थी, मैंने फिगर्स को सेट करना है, पैनल्स बनाने हैं। पैनल मीन के हम देखते हैं कि एक फिगर में समटाइम्स ना बहुत ज्यादा फिगर्स होती हैं। फिगर 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ABCDEF एंड सो ऑन, उसमें पैनल्स बने होते हैं। एक फिगर के अंदर छोटी छोटी तस्वीरें उन्होंने लगाई होती हैं रिसर्चर्स ने। तो अब नेक्स्ट स्टेप था, अब मेरे पास फिगर्स आ गई हैं, डाटा आ गया है। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेज है, मैं फिगर्स सेट करूं, प्लस अपना डाटा एनालाइज करूं, और टेबल सेट करूं। मेरा मटेरियल्स एंड मेथड लिखने के बाद
नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं अपनी फिगर सेट करता हूँ, जो सप्लीमेंट्री फिगर्स हैं उनको सप्लीमेंट्री के तौर पे डिजाइन कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, और जो मैंने मेन आर्टिकल में रखनी है, जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या जो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स हैं, ये जो मैं शो करना चाहता हूँ कि अच्छा ये हमारा कोर, ये हमारा मगज है, ठीक है, ये हमारी स्टडी का जो है ना ब्रेन है, या इसकी कोर फाइंडिंग्स हैं, तो उनको मैं मेन आर्टिकल में ले आता हूँ। फिगर्स और टेबल सेट हो गए। फिगर्स और टेबल सेट होने के बाद आई विल राइट द रिजल्ट्स। ओके, हमारे पास ये फाइंडिंग्स आ गई। अब जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, वो मेनली और मोस्टली जो आपने प्रपोजल में लिखा होता है ना, वही आ जाता है। जस्ट उसको आप रिफाइन करते हैं, अपग्रेड करते हैं, और उसमें बैकग्राउंड थोड़ा मजीद डालते हैं कि अच्छा साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उसको थोड़ा। अगर अगर आपका बैकग्राउंड या रैशनल्स प्रपोजल में आपने उनको उस तरह डिटेल या जस्टिफाई नहीं किया हुआ, तो आप थोड़ा लिटरेचर को फर्दर रिव्यू करके तो आप उसका इंट्रोडक्शन दोबारा सेट कर लेते हैं। पहला स्टेप हो गया मटेरियल्स एंड मेथड, देन फिगर्स एंड फिगर पैनल्स एंड टेबल्स, देन रिजल्ट्स, देन इंट्रोडक्शन, और फिर आप अपनी डिस्कशन लिख लेते हैं। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन इज मेनली अबाउट आपने क्या फाइंड किया और प्रीवियस ऑथर्स ने, प्रीवियस रिसर्चर्स ने क्या फाइंड किया हुआ है। आप उसका एक कंपैरिजन करते हैं और इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले भी थोड़ा ये बता दिया कि आप ये डिस्कस करते हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या आए और दूसरों के क्या थे, क्या वो इनलाइन है, क्या वो डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो क्यों है, अगर इनलाइन है तो क्या ऐसी वजह बनी कि वो इनलाइन बन गए, ठीक है, वो सिमिलर आ गए। तो ये डिस्कशन पार्ट होती है। सबसे एंड पे मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ योर रिसर्च, योर वर्क। क्या आपने जो काम किया है 2-3 साल में, और जिस पे आपने ये नीचे सारा आर्टिकल लिख दिया है मटेरियल्स एंड मेथड का, और सारा उसका लुबे लुबाब क्या है उस काम का। तो एब्स्ट्रैक्ट इज एक्चुअली समरी, शॉर्ट समरी ऑफ योर वर्क। तो वो आप फिर आप अपना उसमें बैकग्राउंड हल्का सा मेंशन करते हैं, थोड़ा सा मेथड बताते हैं कि अच्छा ये मेथड हमने यूज करके ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन था या बैकग्राउंड था उसको स्टडी किया, फिर हमारे ये रिजल्ट्स आए और उसका ये कंक्लूजन है। तो ये एक 250 वर्ड से 300 वर्ड्स तक मोस्टली एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो है ना ये तैयार होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहला सेक्शन आ जाता है इसलिए कि क्विकली हमें एक समरी चाहिए होती है ऑथर्स को, रीडर्स को, या जो ऑडियंस होती है जनरल की, वो क्विकली देखना चाहती है कि अच्छा ये काम किया इन्होंने तो कैसे किया और क्या फाइंडिंग्स आई हैं और क्या आगे इसका जो है ना वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल। तो इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें मैं देखूं तो इसमें जो पहली 3-4 लाइनें हैं ना, इसमें आप इसका बैकग्राउंड हल्का सा देखेंगे एक लाइन में, और क्वेश्चन देखेंगे जो हमने एड्रेस किया है, ठीक है। However, the molecular mechanisms underlying heat stress in rice are not fully understood yet. तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, हमने हीट स्ट्रेस के मोलेकुलर मैकेनिज्म और उसको स्टडी करना था, और उसका बैकग्राउंड पीछे हीट स्ट्रेस का दिया, फोटोसिंथेसिस का दिया थोड़ा सा, कि वो इम्पोर्टेंट है प्लांट ग्रोथ में, हैबिट में। देन हमने इस स्टडी में मटेरियल्स एंड मेथड कौन से यूज किए वो हमने डिस्कस कर दिए यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमने 3 लाइंस पे हमने अपना मटेरियल और मेथड बता दिया कि हमने ये वाला मेथड यूज किया, ये हमारा मटेरियल था, और हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए ये काम किया। इससे आगे हमारे ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स की समरी है कि हमने जो काम किया उसकी ये फाइंडिंग्स थी हमारे पास, ठीक है जी। मतलब ये किस तरह स्प्लिट हो रहा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट ना, बैकग्राउंड, हल्का सा मटेरियल एंड मेथड दैट वी हैव यूज्ड टू स्टडी द क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस, और फिर उसकी फाइंडिंग्स क्या आई, देन इसका कंक्लूजन क्या है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या, आगे इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, ठीक है जी। ये 1-2 लाइन में हमने इसको कंक्लूड भी कर दिया नीचे। अच्छा, आगे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है ना, मोस्टली, अच्छा मोस्टली कह लें या इन जनरल कह लें, इन जनरल ये होता है कि ब्रॉड टू नैरो लोग जाते हैं, ठीक है। ब्रॉड मीन के हम बिगर पिक्चर देखते हैं कि बिगर पिक्चर में हमारे पास कोई भी बिग चैलेंज है, उसको लोगों ने पहले
स्टडी किया हुआ है तो कैसे कैसे स्टडी किया हुआ है, और फिर एट द एंड हम गैप पे आ जाते हैं। यही मेरा एक मॉडल होता है हर पेपर में या हर स्टडी में कि अच्छा मैं ब्रॉडर पिक्चर से शुरू करता हूँ कि ब्रॉडर एग्रीकल्चर का चैलेंज क्या है। से फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रेस है। अच्छा, हीट स्ट्रेस चैलेंज है तो उसकी वजह से क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, प्लांट ग्रोथ में कैसे चेंजेस आ रही हैं, पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू आवर पर्पस ऑफ स्टडी। पर्पस ऑफ स्टडी इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव, जिसकी बेस पे हमने अपना प्रपोजल डिजाइन किया, अपनी सारी स्टडी डिजाइन की। हमने ब्रॉडर पिक्चर से स्टोरी को अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके आना है, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ मोल्ड करना है कि सारी चीजें कनेक्ट करें हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ, और वहीं पे जाके गैप भी आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एक ब्रॉडर पिक्चर है प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। और ये इफेक्ट होती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, और ये जब ये इफेक्ट होती है तो प्लांट ग्रोथ और प्लांट हार्मोनल इम्बैलेंस, प्लांट डेवलपमेंट, सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाता है या इफेक्ट होता है। तो इन जनरल ब्रॉडर पिक्चर टू नैरो डाउन करते जाए और अपने क्वेश्चन की तरफ आते जाए तो ये सारा बीच में लिटरेचर दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस को ब्रॉडर पिक्चर से शुरू करके आगे उसका उसका मैकेनिज्म, उसका फिनोमिना, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं, और particularly related to my question was particularly related to PGL10 gene which were involved in the later we found that okay it is involved in the mechanism of chloroplast development and chlorophyll development and also affects the photosynthesis in plants. So जब हमने ये सारा आइडेंटिफाई किया अपने मेथड्स और रिजल्ट्स के साथ, देन मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। तो राइस में या किसी और प्लांट में, किसी और स्पीशीज में अगर PGL10 जीन स्टडी हो चुका है तो क्या उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, उसके क्या रिजल्ट्स थे, उसका ये बैकग्राउंड मैंने इधर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। जब ये बैकग्राउंड इनफ दिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी रेज हुआ कि अच्छा ये जो PGL10 जीन है ये राइस में इसका इसका रोल जो है हीट स्ट्रेस में आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा इसका रोल फॉर एग्जांपल ये है, हेंस इन दिस स्टडी वी आइडेंटिफाइड दिस जीन and try to investigate its physiological, morphological and all other aspects in rice। कि अच्छा ये एक जीन है, ये राइस में पहले इस तरह स्टडी तो हो चुका है मगर इसका ये एंगल स्टडी नहीं हुआ, इसका रोल फोटोसिंथेसिस में प्रॉपरली डिस्कवर या स्टडी नहीं हुआ। तो हमने बैकग्राउंड दे दिया और एट द एंड ये बता दिया कि हमने ये किया और इसकी ये फाइंडिंग्स आई। तो इंट्रोडक्शन इज एक्चुअली द बैकग्राउंड, introduction is actually the rationale. You guys tell the audience why you have planned this study, where was the gap actually, and how did you fill that gap, okay। और ये सारा आपकी हाइपोथेसिस, आपके रैशनल, आपकी स्टोरी, आपके गैप, आपके लिमिटेशंस, आपकी जो प्रपोजल है, स्टडी है, रिसर्च है, उसको उसके गैप्स कहाँ थे, उस पर अभी तक काम कितना हो चुका है और उसमें प्रोग्रेस क्या है और आपने उस गैप को कैसे फिल किया, ये इंट्रोडक्शन होता है। देन आगे एक मटेरियल्स एंड मेथड है। आपने जो जो मेथड्स यूज किए हैं आप उनको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। आप जब लैब में काम कर रहे होंगे तो आपने बड़ा एक्सटेंसिव प्रोटोकॉल यूज किया होगा, ऑलरेडी पब्लिश्ड समटाइम्स प्रोटोकॉल यूज किए होंगे। इट इज वेरी रेयर दैट यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आप इस प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आपने कोई नया प्रोटोकॉल यूज किया है जो कि पहले पब्लिश नहीं हुआ, कहीं यूज नहीं हुआ, तो वो इस सेक्शन में आप डिटेल में मेंशन करेंगे। या फिर आप अगर वो बहुत लेंथी हो रहा है, आपका जो मटेरियल मेथड सेक्शन है वो मेन आर्टिकल में बहुत लेंथी हो रहा है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की वजह से, उस मेथड की वजह से आप उस मेथड को सप्लीमेंट्री में डिटेल में बता दें और सप्लीमेंट्री का रेफरेंस दे दें कि ये वाला डिटेल में मेथड जो है ये सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है। तो यूजुअली ये होता है कि हम क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश मेथड यूज कर रहे होते हैं तो हम उनको साइट कर देते हैं। हमने कोई फॉर एग्जांपल पहले से पब्लिश मेथड यूज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देखता हूँ कि वू एट अल 2007, तो
मैंने जो ये मेथड था जो काम किया, मैंने इसकी तरह किया जैसे इसने पहले किया हुआ था। सीडलिंग्स को जैसे ग्रो किया, जैसे सैम्पलिंग की, जिस स्टेज पे की, मैंने इसको फॉलो करते हुए मैंने सैम्पलिंग की। और मैंने उसको उस सारी डिटेल को नहीं मेंशन किया कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे सैम्पलिंग की, इसी स्टेज पे की। मैंने जस्ट उसका रेफरेंस दे दिया और पीछे लिख दिया कि मैंने ये काम किया एज डिस्क्राइब्ड बाय वू एट ऑल। ठीक है जी। तो ये दो तरीकाकार है मटेरियल्स एंड मेथड को लिखने के। नंबर वन, कि आप अपना मेथड लिखें और उस मेथड की डिटेल के लिए रेफरेंस साइट कर दें। नंबर टू, अगर आपने कोई नया मेथड यूज किया है, या फॉर एग्जांपल मैंने वू एटल का मेथड ही यूज किया है बट विद माइनर मॉडिफिकेशंस, तो मैं वू एटल का रेफरेंस भी दूंगा और जो मैंने माइनर मॉडिफिकेशंस किए हैं वो मैं इधर लिख दूंगा कि मैंने उससे डिफरेंट ये काम किया है। नंबर तीन, अगर आपने टोटली कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल किया है, तो वो एक तो चीज हो जाती है कि आप वो प्रोटोकॉल पब्लिश करें, पेटेंट करें, उसको करें, वो एक अलग से चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप उस प्रोटोकॉल को सप्लीमेंट्री में मेंशन कर दें। अगर वो उसकी वजह से आपका आर्टिकल लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, वर्ड काउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप वो फुल फ्लैज जो आपका डिटेल्ड प्रोटोकॉल है ना, आप उसको सप्लीमेंट्री में मेंशन करो और यहाँ पे सप्लीमेंट्री को साइड कर दें। जैसे हम इधर अगर गस प्रमोटर ऐसे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सी टेबल S2। S2 मीन सप्लीमेंट्री टू। सप्लीमेंट्री टू टेबल में इसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या स्टडी किया हमने, हमने क्लोन किया पिकेबिया वेक्टर है 1305। तो इसके क्लोनिंग में हमने जो प्राइमर्स यूज किए, प्रोबेबली ये प्राइमर्स की बात होगी यहाँ पे, यस, एम्पलीफाइड यूजिंग अ सेट ऑफ प्राइमर्स। अब मैं प्राइमर्स मैंने यहाँ पे मेन आर्टिकल में नहीं लिखे। मैंने क्या किया, प्राइमर्स काफी ज्यादा थे जो हमने यूज किए, मैंने उनका एक टेबल बनाया और उनको सप्लीमेंट्री में डाल दिया और यहाँ पे साइट कर दिया कि अच्छा अगर आपने प्राइमर्स देखने हैं, अगर आपने डिटेल जाननी है, तो आप सप्लीमेंट्री में चले जाएं, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगर मैं वो सारा टेबल इधर देता तो शायद वो एक पेज मेरा वो सप्लीमेंट्री जो एक प्राइमर्स का टेबल था वही खा जाता। तो हमने लेंथ को भी मद्देनजर रखना है, हमने वर्ड काउंट को भी मद्देनजर रखना है, और अपनी स्टोरी को खराब नहीं होने देना, हमने इंटरेस्ट नहीं खोने देना। ठीक है, ऑडियंस को ये नहीं बोर नहीं करना, हमने टू दी पॉइंट बात करनी है, प्रिसाइज रहना है। तो इसी तरह मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन हम स्टेप बाय स्टेप जो जो हम स्टेप करेंगे वो कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, यस डॉक्टर साकिब, आर यू Yeah, यू वांट टू से almost. समथिंग? Almost half time has been passed. ओह, So, इट्स क्विकली, वाओ, yeah, इट्स last 20 minutes remaining. So, if you can just summarize within 5 minutes, so inshallah yes, yes, we will okay, thank you spend very much 15 for minutes. reminding me. Actually I wanted to engage with the audience more. Okay, Yes, yes. so result section is results is very simple. रिजल्ट्स आपने जो काम किया है वही आपने लिखना है, और रिजल्ट में कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा रेफरेंसेस या कोई बहुत ज्यादा साइटेशन यूज नहीं होती। आपने किसी को कोड नहीं करना अनटिल अनलेस कोई बहुत मजबूरी बन जाए, क्योंकि वो सारी चीजें नीचे डिस्कशन में चली जाती हैं। आप यहाँ पे अपने प्योरली जो आपने फाइंड किया है, जो आपने काम किया है, जो आपकी फाइंडिंग्स है, आप वो लिखते हैं। और फाइंडिंग्स भी वो जो क्रिटिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, ये फिगर जिस तरह मैं बात कर रहा था कि पैनल बनते हैं, तो ये फिगर एक ही है। नीचे अगर आप देखेंगे ना इसकी कैप्शन में फिगर 2, ये फिगर 2 है, मैप बेस्ड क्लोनिंग ऑफ PGL10 जीन, ये इसका टाइटल है। ठीक है, मगर इसमें बहुत ज्यादा पैनल है, ABCDEF, ये वाई तक पैनल जा रहे हैं। तो हम पैनलिंग कर लेते हैं, फिगर सेट करते हैं पहले। तो इसी तरह फिर हम वन बाय वन रिजल्ट्स को डिस्कस करते जाते हैं। रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा जी, नीचे अब हम आ जाते हैं वन बाय वन रिजल्ट डिस्कस करने का डिस्कशन पार्ट पे। अब डिस्कशन जैसे मैंने पहले भी थोड़ा ब्रीफली बता दिया है कि ये आपकी ना, जैसे हम जैसे वर्ड से ही ये एक एक टाइटल से ही लग रहा है कि डिस्कशन, हम डिस्कस ही करते हैं इसमें चीजों को कि अच्छा क्लोरोफिल कम हो गया तो क्यों हुआ, पहले क्या ऐसा कोई स्टडी है, पहले रिपोर्टेड है, अगर क्या उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया है कि कम हुआ है इस वजह से, अगर कम हुआ है, अगर उन्होंने क्या रीजन दिया है, आप क्या समझते हैं कि अच्छा इस वजह से हो गया है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अगर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जो जब कंट्राडिक्शन आ जाती है ना, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई लाइक इट एक्चुअली। अच्छा, इनलाइन चीजें आ रही हैं फिर तो परफेक्ट है, फिर इट मींस के नथिंग इज नोवल, नथिंग इज न्यू, आप तो कुछ भी फिर नया नहीं कर रहे। हाँ, जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है फिर उसको जस्टिफाई करें, उसको चेक करें कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है।
पहले अगर 2-4 स्टडीज ये रिपोर्ट कर रही हैं तो आपकी स्टडी डिफरेंट रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस कर रही है, और अगर आप उसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो दैट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू इन योर स्टडी। तो वही नोवेलिटी भी लेके आता है फिर आपके काम में। अगर आप सारा कुछ इनलाइन कर रहे हैं, पहले से जो रिपोर्टेड हैं चीजें वही कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई खास नोवेलिटी के चांसेस भी नहीं होते। तो इस तरह हम अपना डिस्कशन पार्ट स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं, देन एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज, डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करने से हमेशा याद रखें, मेरे मेंटर्स, मेरे सुपरवाइजर, मेरे प्रोफेसर्स हमेशा ये बताते होते थे कि एक्नॉलेज करने से कभी भी आपके काम की वर्थ कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। तो आपने अगर किसी से कोई भी छोटा सा भी कोई सपोर्ट ली है, किसी ने आपके लिए कोई रिव्यू किया है, किसी ने आपके लिए कोई आपको कोई वेक्टर स्पॉन्सर कर दिए, कोई डोनेट कर दिए, या कोई मटेरियल डोनेट कर दिया, ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। इवन मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी ने को थोड़ा गाइड भी कर दिया कहीं पे, किसी स्टेप पे आपने उससे कोई हेल्प ली है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज देम। डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज देम कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपके काम की वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती किसी को शाबाश देने से, किसी को एक्नॉलेज करने से, किसी को अप्रिशिएट करने से, बल्कि बढ़ती है, हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह एक्नॉलेज करें अपना जो भी डिज़ाइन है। पब्लिकेशन पार्ट पे आते हैं, वैसे वो भी क्विकली गो थ्रू करूंगा। तो ये सारा आप इस तरह अपना आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप। मैं जस्ट सबमिशन को एक छोटा सा समराइज करूंगा डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर मैं डिस्कशन की तरफ आता हूँ। जी जी प्लीज। मुझे देखो। ओके। मैंने रिसेंटली राइस जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड ज्वाइन किया एज एन एसोसिएट एडिटर, तो मैं उसी को प्रमोट करूंगा। योर सबमिशंस आर वेलकम। तो फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल सबमिट करना है, तो आर्टिकल सबमिशन से पहले कुछ चीज़ें होती हैं। आपने आर्टिकल लिख लिया है, मैं सबमिशन की डिटेल में जी नहीं जाऊंगा कि कैसे क्या होना है। जस्ट आपको ये पोर्टफोलियो, ये वेबसाइट दिखाता हूँ कि यहाँ से ऐसे आपने जाना है, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, वो आप जान लें। आपने आर्टिकल एक लिख लिया है, वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, वो एक जनरल फॉर्मेट में है। अब उसमें हमने रेफरेंसेस ऐड किए हैं, फिगर्स ऐड किए हैं, हमने उसको लिखा है, उसका एक स्ट्रक्चर है वो जो कि जर्नल है, हमने उसको फॉलो किया है। बट रिमेंबर, हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है, रेफरेंस स्टाइल अपना होता है, उसका फॉर्मेट अपना होता है। कि समटाइम जर्नल कहता है कि इंट्रोडक्शन के बाद आप रिजल्ट्स मेंशन करें, उसके बाद आप डिस्कशन दें, और सबसे एंड पे मटेरियल्स एंड मेथड दें। कुछ जर्नल्स कहते हैं कि अच्छा, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स एंड देन डिस्कशन। और इस तरह हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। हमने सबसे पहले किसी भी जर्नल को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्टडी किस जर्नल के लिए सूटेबल है। सॉरी। अगर हम I'm not discussing the journals, what are the journals and what are these things. So आप जर्नल आइडेंटिफाई करें, अपना पोटेंशियल जर्नल आइडेंटिफाई करें, और उसकी डायरेक्ट ऑथर्स गाइडलाइन में जाएं। जैसे यहाँ पे राइस के ये वेब पेज पे सबमिशन गाइडलाइंस हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप बिफोर यू सबमिट आपने ये सारी चीजें देखनी है। क्या आपका जो आर्टिकल है, स्टडी है, वो जर्नल के एम्स एंड स्कोप में फिट हो रहा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आपके पास फंड्स हैं अपनी पब्लिकेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ जर्नल्स ओपन एक्सेस होते हैं, कुछ जर्नल हाइब्रिड होते हैं, और कुछ क्लोज एक्सेस। तो जो तो ओपन एक्सेस जर्नल नहीं है वो तो आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, कॉपीराइट्स का इशू, वो ब्ला ब्ला चीजें होती हैं, ठीक है। और जो ओपन एक्सेस जर्नल हैं, कुछ प्योरली ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, तो वो आपसे चार्जेस लेंगे कुछ आपकी स्टडी को ओपन करने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये सारी चीजें आपने पहले देख लेनी है। फिर आपने देखना है कि सबमिट करने से पहले अगर आपका रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू है, ओके, देयर आर द कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज, वी मिस दिस पार्ट, ओके।
हम क्योंकि हमने सिर्फ रिसर्च आर्टिकल पे फोकस किया है, तो हम रिसर्च आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, तो इसका इसका एक डिटेल हमारे पास आ जाएगी कि अच्छा क्या क्या कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ये सारा हर जर्नल का अपना एक तरीकाकार है, अपना एक स्टाइल है, फॉर्मेट है, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने उसके अकॉर्डिंग अपना रेफरेंस स्टाइल, अपना वो स्टाइल, फॉर्मेट, आर्टिकल स्ट्रक्चर, सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग कर लिया है, वर्ड काउंट अगर उन्होंने कहीं को मेंशन किया हुआ है कि लिमिटेशन है कहीं पे, तो वो भी फॉलो करनी है आपने। एब्स्ट्रैक्ट की पर्टिकुलरली लिमिट होती है, कुछ जर्नल्स होते हैं वो 250 वर्ड्स से अबव एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी लिमिट करें इसे 250 तक। तो वो सारी चीजें आपने अंडर कंसिडरेशन करनी है, देखना है उनको। जब रेडी हो गया तो फिर आपने एक कवर लेटर बनाना है। ठीक है। कवर लेटर में आपने बताना है, कवर लेटर, अच्छा, रेडी होने से पहले भी एक स्टेप है वैसे। आप ना इनफॉर्मल सबमिशन से पहले एडिटर इन चीफ को अप्रोच करें, उसे बताएं आपने ये स्टडी किया है और ये आपकी फाइंडिंग्स हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं उसके जर्नल में सबमिशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए, तो क्या मेरी स्टडी या ये मेरी फाइंडिंग्स सूटेबल हैं, या आप समझते हैं कि इज इट इन द एम्स एंड स्कोप ऑफ द जर्नल। अगर एडिटर इन चीफ आपको गो अहेड कह देता है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो ऑलरेडी आपने क्लियर कर लिया। जो एडिटर इन चीफ समटाइम्स रिजेक्ट कर देता होता है अगर बहुत ज्यादा बड़े कोई इश्यूज हो, तो आप एडिटर इन चीफ को पहले मेल करके उसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप नहीं भी पूछा, इट्स ओके, इट्स एन ऑप्शनल। आप डायरेक्ट सबमिट करवाएं, सबमिशन पोर्टल पे जाएं, और सबमिट करते हुए आपको दो चीजें चाहिए होंगी मेनली, अदर्स आर ऑप्शनल। एक, आपने कवर लेटर अपलोड करना है, और कवर लेटर का एक स्टाइल है प्रॉपर, उसमें आपने अपना बताना है कि ये आपकी स्टडी का टाइटल है, आपने एडिटर इन चीफ को एड्रेस करना है, और आपने बताना है कि अच्छा ये टाइटल है, ये फाइंडिंग्स हैं, इसका ये एम्स एंड स्कोप है, और ये आप इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि ये आपके लिए, आपके जर्नल में फिट आ रहा है, और आपकी ऑडियंस, आपके रीडर्स के लिए बेस्ट फिट है, तो ये पहले कहीं पब्लिश नहीं हुआ, इसमें कोई इशू, एथिकल इश्यूज नहीं है, लिहाजा इसको कंसीडर करें अपने जर्नल में पब्लिश करने के लिए। तो इस तरह एक कवर लेटर डिजाइन करके आप फिर ये हर जर्नल की वेबसाइट पे सबमिट मैन्यूस्क्रिप्ट का एक आपके पास बटन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, और आगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, फुल फॉर्म आएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, और आपने सबमिट करवा देना है। आई थिंक दैट्स इट। फाइनली एक मैं एक दो टिप दे देता हूँ, और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन का आगाज कर लेते हैं। टिप फाइनल ये है कि नंबर वन, आप कोर्सेज लें, ऑनलाइन ले लें, अपनी यूनिवर्सिटी में ले लें, और रेगुलर इस चीज को अंडरस्टैंड करें, रीड करें। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे नजदीक है वो ये है कि रीडिंग करें बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे अपनी फील्ड के मतलब, अपने प्रोजेक्ट के मतलब, अपने क्वेश्चन जो आप साइंटिफिक क्वेश्चन एड्रेस करने जा रहे हैं, आप उतना ज्यादा आपकी ग्रेप ऑफ की नॉलेज बढ़ेगी, और आपके लिए राइट करना चीजों को इजी होगा। सो रीड एज मच एज पॉसिबल बिफोर राइटिंग। तीसरा जो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अम, वो ये है कि कंटिन्यूसली लिखें, गैप नहीं दें। एक आप में स्किल डेवलप हो गई है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने राइटिंग शुरू कर दी है, या आप राइट कर रहे हैं, आप अच्छा राइट कर रहे हैं, आपने ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज गेन की है, डोंट स्टॉप इट देन, डोंट गिव इट अ बिग गैप। ओके। तो ये मेरे नज़दीक ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप अगर ये करते हैं तो यू विल नेवर एवर फील डाउन in your research career or publishing career. Thank you very much for bearing me and listening me. I was not aiming to speak too much, but anyway, it went a lot. I'm so sorry for that actually. Okay, if you have guys any questions, please feel free to ask the questions. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शकील। माशाल्लाह, आपने जो अपना नॉलेज है वो डिलीवर किया है बेस्ड ऑन योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं। मैं चाहता हूं कि Sure. पहले मैं पूछ लूं,
ताकि इंशाल्लाह Sure. इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस पूछेंगे वो इंशाल्लाह उनको क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन रिटर्न में अपने जो क्वेश्चंस हैं, हमारा जो वर्कशॉप का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे काइंडली शेयर करें। तो वहाँ पे फिर हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे एड्रेस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस वहाँ पे डॉक्टर शकील लेटर ऑन वहाँ पे वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आई ग्रेजुएटेड विद बैचलर इन 2011। मैं अपने आप को पीछे ले जाता हूँ 2011 के अंदर, या मैं 2013 में ले जाता हूँ जब मैंने एक भी रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखा था। ऑल्दो आई डिड माई रिसर्च इन मास्टर, जैसा मोस्टली पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, वो शायद किसी को 20% रिसर्च की नो हाउ होती है स्टिल आफ्टर ग्रेजुएशन विद मास्टर डिग्री, कि उन्होंने कोई आर्टिकल खुद से पब्लिश किया हो या जस्ट किसी सीनियर की हेल्प करके या किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके अपना नाम वो डलवा लेते हैं, लेकिन उनको नथिंग, उनको पता नहीं होता। मैं अपनी बात करता हूँ, व्हेन आई वेंट फॉर पीएचडी इन सऊदी अरेबिया, आई डिडंट हैव एनी आर्टिकल। और मुझे याद है कि जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट, तो कई दिन तक मतलब मैं एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सका। लेकिन बस एक दिन मैं बताता हूँ, रियल स्टोरी है, कुछ मेरे कोलीग्स भी होंगे जिनको पता है ये, जो मेरे लैब फेलो थे, डॉक्टर जवाद हैं, ईद खान है। अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा कि बड़े गुस्से में कि डिड यू राइट, आई मतलब मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था, आई डोंट नो कि हाउ टू राइट। ऑल्दो कि आई फिनिश माय मास्टर थीसिस, आई डिड माई सेल्फ, आई रिटन माई सेल्फ माई मास्टर थीसिस, लेकिन शायद वो लैब एनवायरनमेंट या कुछ और चीजें थी जो मुझे मतलब ग्रूम नहीं कर सकी एज ए रिसर्चर, कि जब मैं पीएचडी के लिए बाहर गया तो वहां, क्योंकि अब देखें जो भी आपको स्कॉलरशिप देता है, आपके फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको यानी कि देता है, वो ये नहीं कि आप वहां आके वो आपको सिखाएगा। मतलब जो आप पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, दे एक्सपेक्ट कि ये हमें मतलब फैसिलिटेट करे हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे रिसर्च पेपर्स में, जिससे चाइना के अंदर बहुत सारे कंट्रीज में मतलब रिसर्च पेपर्स मीन बिजनेस और मनी, क्योंकि आप पब्लिश करेंगे, आपकी लैब की जो कह लें या यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो हाई होगी, आपको पैसे मिलेंगे, सारी चीजें होती हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जी आपने लिखा है, कई दिन थे मतलब ना, मैंने कहा नो। कहता ओके, आई एम गोइंग फॉर प्रेयर एंड आई वांट टू सी द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इफ यू कुडंट देन आई विल सी यू। अच्छा, बहरहाल वो नमाज पढ़ के आए, मैं लगा रहा, मैंने कुछ लिखा, तो मैं अंडर प्रेशर चला गया ना। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ओके, टुडे नाइट बिफोर 12 आई वांट टू सी द कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो सिचुएशन ये है कि सर जब प्रेशर आता है आपके ऊपर तो आप सीखते हैं, और मैंने फिर वो विद इन मतलब जो मैं पिछले कई दिनों से नहीं कर सका वो मैंने 6 आवर्स के अंदर उनको लिख के सेंड किया, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उसको। तो समझो मतलब हम ये फील करें कि हम मास्टर का स्टूडेंट है, उसने थीसिस लिखा है लेकिन रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखा, उसको नहीं पता कि जी पेपर क्या होता है, जर्नल्स क्या हैं, और किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब पहला जो आर्टिकल है वो कोई कैसे लिखे, कैसे स्टार्ट करे खुद से, ना कि वो सीनियर को देख के, प्रोफेसर को देख के अपना नाम डलवा लिया, जो लोग हम लोग अमूमन करते हैं पाकिस्तान में ना। तो इस हवाले से आप मतलब किस तरह समराइज करेंगे? मतलब एक तो मैं भी सजेशन दे दूंगा कि आपको पहले पढ़ना चाहिए, लिखने से पहले पढ़ना चाहिए। मेरे एक प्रोफेसर हैं माशाल्लाह बैचलर में, उन्होंने, डॉक्टर अबू बकर रजा साहब हैं उनका नाम, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें एक कोट कह लें या उसको बड़ी एक अच्छी नसीहत की थी कि इफ यू वांट टू राइट वेल रीड मोर, और इफ यू वांट टू स्पीक वेल लिसन मोर, मोर एंड मोर ना। तो रीडिंग इज द की, लिटरेचर रिव्यू, रीडिंग इज द की बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो के स्टिल में भी लास्ट 1 ईयर में आउट ऑफ रिसर्च हूँ। जिससे आपने बात की कि आप अपने उसको टेम्पो जो आपका बन गया है राइटिंग का, उसको ना मतलब छोड़ें काफी अरसे के लिए, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं आजकल हूँ, आई कुडंट फोकस, क्योंकि रीडिंग के लिए आपको फोकस करना पड़ता है एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूसली। जब आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ पेपर्स को, फिर कहीं जाके आप एक पैराग्राफ साइंटिफिकली राइट करने के काबिल होते हैं। तो काइंडली मतलब ये मेरे चंद चीजें थी जो मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको एक मैसेज मिले कि हाउ टू राइट योर फर्स्ट आर्टिकल, और उसमें फिर जो आपने माशाल्लाह स्टेप्स बताए हैं डिटेल में, वो चीजें सारी कवर हो जाएंगी। थैंक यू।
जबरदस्त, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही वैसे दे दिया है। और ये मैंने फाइनल अपने टिप्स में भी बात की कि लिखने से पहले पढ़ें। और अगर आपका एक्सपीरियंस पहले नहीं है तो आप ट्रेनिंग लें, इसकी कोर्सेज लें। कोर्सेज से आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लर्निंग होगी। आपको पता चलेगा कि आर्टिकल पहला आर्टिकल है, या आप राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कैसे लिखना है, कौन से एथिक्स नॉर्म्स उनका ख्याल रखना है। और फिर उसके साथ साथ आप पढ़ें अपनी फील्ड को, अपने रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको पढ़ें। यही इसमें मेरा ख्याल है एक की पॉइंट है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के साथ साथ ना, अम, आप चीज़ों को एक तो मेमोराइज करते हैं, फिर रीडिंग के साथ साथ आपकी अपनी अपने अंदर एक स्टोरी बनती जाती है। जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं ना कि आप वर्बली फिल बदी कुछ लिख पाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल आ जाती है। और वो ऑटोमेटिकली लिखने वाला काम कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे। और ये ऐसा तो है नहीं कि आपने रट्टा लगाना है कोई किसी चीज को, नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम भी तो डिस्कशंस करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। हम कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम न्यूज़ सुन के अपना जो है उसका नॉलेज ले रहे होते हैं, या इधर उधर से सुन के नॉलेज ले रहे होते हैं। तो क्या हो रहा होता है कि वो एक हमारी एक स्टोरी बन रही होती है, और कहीं पे भी हम बैठते हैं तो हम विल बदी हम किसी को कोई जो है ना वो कहीं से हेल्प नहीं ले रहे होते। हम अपना एक ओपिनियन या अपनी एक स्टोरी, वो या पास्ट की कोई चीज हुई है तो वो बता रहे होते हैं। तो सिंपल इज कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपके पास नॉलेज आएगा। जब आपके पास अपनी एक स्टोरी बनाने का नॉलेज आ जाएगा तो आप लिख सकेंगे। तो अर्ली कैरियर्स के लिए, इवन फॉर माई सेल्फ एज वेल, आई वुड मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी थोड़ा टाइम मिले, कोई आर्टिकल लेटेस्ट कोई भी आर्टिकल आया मेरी फील्ड का, तो उसका कुछ नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा मैं एब्स्ट्रैक्ट कम से कम पढ़ लूँ। अगर मैं वो सारा नहीं पढ़ सकता ना, उसकी कुछ समरी पढ़ लूँ कि अच्छा इन्होंने क्या किया है और कैसे किया, क्या ताकि कल को अगर कहीं मुझे कुछ लिखना पड़ता है तो हमने पूरा आर्टिकल तो नहीं लिखना ना वो वाला, हमने तो एक लाइन में उसको बताना है कि अच्छा फलां ने ये काम किया था। तो एक प्रोग्रेस अपडेट रहती है। तो पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं। जब भी टाइम फ्री हो आप बुक्स को रीड करें, आप रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ें, अपने टॉपिक के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जब ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी राइटिंग स्किल इनके अंदर बिल्ड होती जाएगी। अच्छा, राइटिंग रीडिंग का ना एक और फायदा है। रीडिंग से सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल नहीं इंप्रूव होती, रीडिंग से आइडियाज भी आते हैं। लोग पूछते हैं ना कि हम प्रपोजल कैसे लिखें, या आइडिया कैसे जनरेट करें, या हमें कैसे पता चले कि भाई इस चीज पे काम हो चुका है, इस पे नहीं हुआ। पढ़ने से होगा भाई, पढ़ने से पता चलेगा। आप पढ़ें। आप जब पढ़ेंगे तो दो दो फायदे हो रहे हैं आपके। एक तो आपकी अपनी एक नॉलेज बिल्डिंग हो रही है। दूसरा, आपको गैप्स पता चल रहे हैं। तीसरा, आप खुद भी रिव्यूअर बन जाएंगे। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलने लग जाएगा कि अच्छा इस आर्टिकल में इसने ये गलती की है, इस बंदे ने इसने ये गलती की है। आप उसकी गलती को पकड़ के अपना आइडिया जनरेट करें, अपना प्रपोजल बनाएं और अपनी रिसर्च करें। अगर गलती नहीं भी है तो कोई गैप हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी चीज जो उन ऑथर्स के जेन में, उन रिसर्चर्स के जेन में नहीं आई, हो सकता है वो आपके जेन में आ जाए। दैट इज द पॉइंट वेयर आइडियाज ओरिजिनेट। तो ये थैंक दो यू चीजें हैं, जी आपकी जी रीडिंग पे फोकस होना चाहिए। आप रीडिंग करें एज मच एज पॉसिबल। या दी की जो है रिसर्च आर्टिकल राइटिंग की, मैं समझता हूँ जैसे आपने भी बात की कि वो है रीडिंग, लिटरेचर रिव्यू। जी मतलब जब आप कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई रिसर्च की, तो जैसे आपने माशाल्लाह बताया कि जी आप साथ साथ लिखते थे चीज़ों को, पॉइंट्स को, जो एक आपकी डेली मतलब नोटबुक होती है एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, साथ जी। साथ आप उसको अपने वर्ड फाइल के ऊपर भी जो की पॉइंट्स हैं उनको आप यानी कि यस। मतलब रूटीन एक अच्छे रिसर्चर की यही है। लेकिन उसमें एक और जो चीज़ मैं समझता हूँ कि देखें, जब आप कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तकरीबन कम से कम आपको, जो हमारी फील्ड है एग्रीकल्चर, उसमें मिनिमम भी मतलब 4 to 6 मंथ आपको चाहिए। अगर फील्ड में आपने काम करना है, लैब में भी 3 to 4 मंथ लग जाते हैं। तो एक फोल्डर बना लें, उससे रिलेटेड लेटेस्ट पेपर से आप शुरू करें, कोई रिव्यू पेपर देखें, उसके फिर रेफरेंसेस देखें। आप अपनी एक लाइब्रेरी बना लें। बेहतर है कि आप एंड नोट का इस्तेमाल करें, वहां पे अपनी लाइब्रेरी बना लें।
तो इस तरह वो उन पेपर्स को फिर आप पढ़ें और कोशिश करें A to Z बिल्कुल पढ़ें। डेली नहीं तो बिल्कुल। कम से कम 2 दिन में या 3 दिन में एक पेपर को पढ़ें। और जब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो नियर टू कंप्लीट होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इतना बहुत सारी चीजें, समझे कि 50% आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपका दैट्स ट्रू। इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन राइटअप करने में, आपकी डिस्कशन राइटअप करने में। जिस आपने बात की कि जी हर जो लैब है या हर बंदे का जो पर्सनल या जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रिसर्च पेपर्स राइटअप के, मतलब आई आल्सो बिलोंग स्कूल ऑफ थॉट। जो मतलब मेरे प्रोफेसर थे सऊदी अरब के अंदर, माशाल्लाह ही वाज स्टिल ही इज अ गुड साइंटिस्ट। उन्होंने हमें माशाल्लाह काफी अच्छी रिसर्च के हवाले से चीजें डंडे के जबरदस्ती में सिखाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका फायदा हुआ।